had an idea as to what kind of skills are needed, and we started with the Google Classroom. But there were many teachers who were not very sure. They knew what Google Classroom is. They knew how presentations are made. They knew how to go in for digital content, but they had never tried it, and therefore this new corona pandemic has taught us to utilize whatever skills that we have and become independent amongst us. Now, with most of the students taking online classes at home, maximum बच्चे घर में classes ले रहे हैं and they are surrounded by potential distractions. आप घर में रह रहे हैं तो ऑब्वियसली अगर मान लीजिए 10 o'clock आप लेक्चर शुरू करते हैं, घर में खाना बन रहा होगा, अगर छोटे भाई बहन हैं तो उनके कहीं ना कहीं क्लासेस होंगे, वो परेशान कर सकते हैं. And there are lot many things that are going on in the background. So these are called as potential distractions. Now, keeping them engaged, one, keeping them motivated, that's two, and interested becomes really challenging for us, doesn't it? इतने सब distractions के बीच में हमें उनका जो हम लोग कहेंगे इंटरेस्ट है उसको बांधे रखना है. जैसे हम कोई मूवी देख रहे हैं, and it is ending towards the climax scene. We are very eager. अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है. इतनी उत्सुकता हमें हमारे प्रेजेंटेशन में, लेक्चर में बिल्ड करनी है, और वो कैसे बिल्ड करनी है हम ये आगे वाले स्लाइड्स में देखने वाले हैं. To take this challenge and adapt to the digital classrooms, we teachers need to revamp our arsenal. Now, when I say, आप बोलेंगे arsenal वगैरह ऐसा क्या हो गया कि हमको इतना क्या जरूरत पड़ने लगी है. But yes, in this coming times हमको हमारे मोड को, हमारी टीचिंग पेडागॉजी को चेंज करना ही पड़ेगा. What are the new skills now? Let me tell you. First is being flexible. Now, should I say disadvantage बोलिए हमारे प्रोफेशन का कि हमको बहुत सुनने की आदत नहीं रहती है. We are rigid sometimes, but now we have to be flexible. Flexible in terms of time, number one. Generally, say for example, UG colleges are in the morning, 7 o'clock से 7:30 से classes शुरू हो जाते हैं. Probably अभी class वो time पे शायद ना हो. Probably आपको class 12 o'clock के बाद लेना पड़े. तर अशा परिस्थितीत सुद्धा आपल्याला ज्या टाइमशी स्टुडंट्स कम्फर्टेबल आहे त्या टाइमवर आपल्याला क्लास घेता आला पाहिजे. तेवढी फ्लेक्झिबिलिटी आपल्यात आपण आणली पाहिजे. आणि नेक्स्ट आहे डिलिव्हरी. नाउ व्हेन आय से डिलिव्हरी, I talk about delivery in terms of the new methods कि हमने टेक्नोलॉजी के थ्रू डिलीवर करना है. जैसे ये सिस्को वेबएक्स एक प्लेटफॉर्म है, वैसे ही जूम है, वैसे ही अभी जियो मीट आ गया है, वैसे ही संपर्क नाम का एक है. There are many other platforms that you can use to impart the lecture. So delivery and should be another thing. Then updated. You need to update your knowledge every now and then. जैसे मैंने कहा स्टूडेंट्स के फिंगर टिप्स पे इंफॉर्मेशन है, गूगल करेंगे मिल जाएगा, पर हमें ऐसा नॉलेज उन तक पहुंचाना है जो उनके लिए जरूरी है. And therefore we need to update our own knowledge every now and then. Then comes student issues. We need to understand what are the problems that they are going through. I believe Nagpur University ka psychology department is holding one webinar, and I believe a workshop also for teachers in understanding the psychology of the students. What are the different problems the students are facing? हमको लगता है कि प्रॉब्लम सिर्फ हमें है, but students also have various issues. किसी के पास कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम रहता है. एग्जाम्पल मैं ही खुद मेरे स्टूडेंट का आपको देती हूँ. हमें MBA 4th सेमेस्टर का वाइवा लेना था. ना जो हॉस्टलाइट बच्चे हैं बेचारे इतने दिन तो रहेंगे नहीं यहाँ पे, सो दे हैड गॉन टू देयर होम टाउन. एक बच्चा था उत्तराखंड का है. जैसे ही लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा उठने लगा, बसेस सर्विसेज अलग अलग स्टेट्स के वो अपने लोगों को ले जाने गए. ही वेंट बैक टू हिज
टाउन कॉल्ड एज बद्दी इन उत्तराखंड. एक और लड़की है जो पांढर कौड़ा के और आगे एक छोटा सा गांव है, वहां पे रहती है. कनेक्टिव्हिटी इश्यूज थे. वो लड़की का घबराते हुए फोन आया, मॅडम आप तुम्ही ऑनलाईन व्हायवा घेणार आहे असं समजलं, पण मॅडम माझ्या इथे तर कनेक्टिव्हिटी नाही, माझ्याजवळ तर लॅपटॉप सुद्धा नाहीये, की कसं करू मी. वी हैड टू मेक हर अंडरस्टैंड कि ओके ऐसा प्रॉब्लम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तुम्हारा वायवा टेलिफोनिकली लेंगे और वो चीज को हम लोग रेकॉर्ड करेंगे. पण त्या मुलीनी तिला वाटलं की नाही बो आपल्याला फेल वगैरे करतील आहेत, काय करतील आहेत, ती आपल्या दुसऱ्या गावात मैत्रिणीकडे गेली, तिचं लॅपटॉप घेतलं आणि तिथून तिने वायवा दिला. जो मुलगा होता उत्तराखंडचा, त्याचा इश्यू असा होता की कनेक्टिव्हिटी नव्हती. तो सुद्धा बाल्कनीतून इकडून तिकडून जाऊन रेंज जिथे शक्य होती तिथून त्यांनी वायवा दिला. Now we also need to understand that students have issues. Probably किसी के पास इतना डेटा नहीं रहता है कि वो सभी ऑनलाइन लेक्चर्स शेयर करे. एंड एट दिस जंक्चर हमें ये समझना है कि हमें कैसे भी करके वो बच्चे तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, नॉलेज पहुंचाना है, तो वो कैसे पहुंचाएंगे. अगर वो बच्चा मान लीजिए ऑनलाइन लेक्चर नहीं अटेंड कर पाता है, बट लेटर ऑन इफ ही वांट्स टू सी दैट लेक्चर समवेयर, आप उस लेक्चर को यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं, आपकी कॉलेज की वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं, या सिंपली आपका अगर व्हाट्सएप ग्रुप होगा बच्चों के साथ उस पर आप शेयर कर सकते हो. So whenever time comes, the kid can see that presentation and gain knowledge. I hope I'm not going too fast. आता language वगैरह सगळं ठीक आहे का? Should I continue? Yes, Yes, madam. Okay. Let us move ahead. That we need to be tech savvy. Now, when I say tech savvy, we need to understand the digital platforms, how these platforms are going on, and how we can use those platforms for betterment. Earlier, when Zoom started, Zoom has a limit of 40 minutes for per class. Now, what happens is in Zoom, आप सिखा रहे हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि तंद्री लग जाती है सिखाते सिखाते, और आप इतना उस पॉइंट को लेके डीप में चले गए हो, एंड इमीडिएटली डीप आता है दैट योर टाइम इज गेटिंग ओवर नाउ. ओके, एंड यू नीड टू जल्दी जल्दी से आपको वो खत्म करना पड़ता है. क्या वो फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन रहा? क्या हमने जो सोचा था वो कर पाए? नहीं, तब नहीं हो पाएगा. एंड देयरफॉर अगर हमारे पास फ्री वाला जूम की मैं बात कर रही हूँ, अगर हमने प्राइसिंग ऑप्शंस देखे उसको खरीद लिया है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे तो आप एक आध घंटे के ऊपर भी क्लास ले सकते हैं. बट नॉट अगर ये नहीं है आपके पास तो आप दूसरा डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं. Then comes latest developments. What are the latest developments? जो आज ये जो हमारा पूरा ICT कोर्स है रादर, ये लेटेस्ट डेवलपमेंट्स ही आपको बताने वाला है कि how to make the best use of digital tools to make your classrooms more interactive. I hope I have explained few new skills. I am talking about few. थोड़ी सी skills मैंने आपको बताई है. One is being flexible in terms of time as well as delivery. Then we talk about updation of our knowledge and what are the issues the students are facing. Then we talked about being tech savvy, that is digital platforms and latest developments. Moving on to the new communication. Now the process remains the same. जो हमारा टीचिंग प्रोसेस है, that is sending of information, that remains the same, but the mode of sending that information has changed. पहले मैं क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पे या स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाती थी, अभी मैं एक डिजिटल क्लासरूम में व्हाइट बोर्ड के थ्रू पढ़ा रही हूँ. Receiver remains the same, but his or her mental state is different. He is sitting at his home in his comfort zone, and therefore he will probably be in a different zone altogether, and you need to capture his or her attention. Sender, that is us, the teachers, though we do the same teaching process, we have to undergo a sea change in order to make the communication effective. So, हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो पूरा प्रोसेस है कम्युनिकेशन का, right? That is the receiver, the sender,
दोनों सेम रहने वाले हैं, बट उनकी मेंटल स्टेट में और मोड ऑफ इंफॉर्मेशन में चेंज आने वाला है, एंड देयरफॉर वी नीड टू मेक ह्यूज चेंजेस टू मेक द कम्युनिकेशन इफेक्टिव. Now the C's of communication, जो कि मैंने पहले ही कहा था, are important in the digital classroom. So these C's are very important. One is clarity. Clarity in which mode that I am going to use, clarity in making good lesson plans, and clarity in terms of material that I am going to share with my students. I'm going to explain this slowly. Let me first tell you what are the C's. Communication, that is content, that is audience, and is it relevant? Now, when I say content, okay, content means हम क्या देने वाले हैं बच्चों को, right? That is more important. या अगर मैं easy और एक example दूँ, तो content is the dish that we are going to serve to our customers, right? Students आज की date में हमारे customers हैं, एंड हमें हमारी ऑडियंस के हिसाब से, उनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कंटेंट को रेलेवेंट भी रखना है. एट द सेम टाइम हमने हमारे कंटेंट को, जो हमने क्लैरिटी की बात की है, उसके हिसाब से भी रखना है. देन कम्स कंसाइज, स्मॉलर यूनिट्स. अगर पहले हम लोग हमारी 1 घंटे की क्लास में एक पूरा यूनिट खत्म करने का सोचते थे या आधा यूनिट खत्म करने का सोचते थे, प्रॉबेबली ये अभी पॉसिबल नहीं है. डिजिटल क्लासरूम में अटेंशन स्पैन कम रहने वाला है, तो जो आप 1 या आधा यूनिट करते थे, अभी प्रॉबेबली उसका एक सब टॉपिक ही कर पाएंगे. बिकॉज एट द एंड ऑफ द सेशन हमारा गोल क्या है कि जो हमने सोचा है, द आउटकम जिसको हम लोग बोलते हैं, गोल जिसको बोलेंगे, that has to be achieved, and therefore we need to keep it concise, we need to keep it short. Then comes complete, that is the full package. Whenever we give anything to the students, it needs to be packaged very artistically, very aesthetically, and it should make a lasting impression on them. So these are the 4 basic C's that will help you in making your communication effective in the digital classroom. So let us go one by one. That is clarity. Now, when we talk about clarity in terms of lesson plans. What are lesson plans? Have any of you made lesson plans earlier? आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं इसका आंसर, या अगर कोई अनम्यूट करके बताना चाहे तो भी चलेगा. Have any of you made lesson plans earlier? I need answer from the participants. Yes, Rajesh Deshmukh sir is saying that yes, they have made lessons plans earlier. Now, when lesson plans were made, what happens is we are making a detailed description of when to teach, what to teach. ये हमारे दिमाग में clear आ जाता है. एंड क्या मटेरियल देने वाले हैं, ये भी हम लोग पहले से क्लियर कर लेते हैं. सो जो मैंने पहले कहा, कंटेंट सेम रहने वाला है, सिलेबस सेम रहने वाला है, उसकी डिलीवरी अलग रहने वाली है. क्लासरूम सेम रहेगी बट प्लेस डिजिटल रहेगी. इंटरैक्शन सेम रहेगा पर मोड अलग होंगे. टीचर सेम रहेगी पर टीचिंग टेक्निक बदलने वाली है. अब यहाँ पे मैं इन शॉर्ट आपको बता देती हूँ कि एक लेक्चर को एक मीनिंगफुल वे में अगर हमको लेना है तो क्या करना है. सबसे पहले आएगी इंट्रोडक्टरी फेज. In this, the first is checking entry behavior. Now, what is entry behavior? What happens is when a student takes admission to a particular course or a program, let me say, जैसे MBA program है, उसमें उसने admission लिया है. Now he comes from arts, he comes from science, he comes from architecture, maybe engineering, even medical. Now that is the entry behavior that I need to understand as a teacher. If I teach, say, accounts, and I have 50 students in my class who are from arts background, will I start immediately or will I go slow? Obviously, I am going to go slow. किसी आर्ट्स वाले ने डेबिट क्रेडिट वर्ड ही नहीं सुना होगा, उसको पता ही नहीं है क्या करना है.
So if I know the entry behavior of my students, I can plan my lecture in a way. मतलब मुझे बेसिक से शुरू करना पड़ेगा उनके लिए, शायद उन 50 लोगों के लिए शायद एक आध हफ्ते का मुझे एक छोटा सा वर्कशॉप डिजाइन करना पड़ेगा, जहां की मैं उनको एक सबके साथ लाने के लिए, होमोजीनियस ग्रुप बनाने के लिए आई विल प्रिपेयर देम. सो एंट्री बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है. देन रिलेटिंग टू अर्लियर नॉलेज, उन्होंने इसके पहले क्या सीखा हुआ है, डू दे नो द कॉन्सेप्ट्स अर्लियर, and then motivating the students. So my introductory phase in my lecture is going to be checking the entry behavior. Do they know something about that? And then motivating the students as well. So the moment I enter into the class, after the initial greetings of say, good morning, how are you, how was your day, etc., I need to immediately, before starting my topic, assuming that this is the first lecture of the course that I am teaching. So say I am teaching human resource management. So the first question I can ask them is, what in your opinion is human resource management? Do you have any idea of what human resource management could be? And I can simply, take their opinions. Now I will motivate the students कि अच्छा, हाँ ये तो बहुत बढ़िया है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को हम लोग ऐसे ये प्रकार से पढ़ने वाले हैं और आपको बहुत मजा आएगा. वी विल हैव लॉट्स ऑफ फन एक्सेट्रा. So what I'm doing, I'm trying to create interest. I'm trying to motivate my students. That is the introductory phase. Then comes the development phase. That is using illustrations. People do not want to see the routine. Okay, they need to see some bright pictures, some charts, some tape. So using audio visuals is going to be really important, and be conversational into the classroom. Now, unfortunately, डिजिटल क्लासरूम्स में कॉन्वर्सेशन पॉसिबल है, बट फॉर अ लिमिटेड टाइम. जैसे हम लोग स्टूडेंट्स को कंटिन्यूअसली देख सकते थे इन द क्लासरूम, उनकी सिर्फ एक झलक से पता चलता था इनको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है. इन डिजिटल क्लासरूम्स इट इज पॉसिबल. हाउ? आई विल टेल यू. आप एक व्हाइट बोर्ड अपने क्लासरूम में अटैच कर सकते हैं. जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना है एंड यू वांट कि अभी शायद बच्चे बोर हो रहे हैं, आप वो इमीडिएटली व्हाइट बोर्ड ले लीजिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए एक आधा क्वेश्चन डाल दीजिए एंड स्टार्ट. Say for example, I want to talk about a topic called as nepotism in HR, or unfair recruitment practices. And now Sushant Singh Rajput का केस इतना हाई पे चल रहा है, students will immediately jump in and start answering. So you need to plan and have some short, इसको मैं बोलूंगी teasers, to make the conversation active. मैं बहुत फास्ट तो नहीं जा रही हूँ. Is everybody able to understand what I'm trying to say? Yes, ma'am. Okay. So let me move ahead to the consolidation phase. Now, in the consolidation phase, let us talk about review and summarize. Now, at the end of my session, say for example, I have a 1 hour session. 15 minutes के पहले मेरा consolidation phase आना चाहिए, जहाँ पे मैं review और summarize में चली जाऊंगी. Generally, what I use in my classes is a recap and a pre-cap. Okay? अर्लियर लेक्चर में क्या हुआ ये जाते साथ पूछती हूँ, और एट द एंड ऑफ द लेक्चर आज हमने अभी क्या पढ़ा ये भी पूछती हूँ. हेल्प्स यू इन इमीडिएट असेसमेंट एंड फीडबैक वहीं के वहीं मिलता है. इट एस्टैब्लिश अचीवमेंट ऑफ गोल्स. नाउ व्हेन आई हैव डिसाइडेड दैट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर the student should be able to define at least what is human resource management, or understand what are the different functions of human resource management. Have I achieved those goals or not? Will be able to, I'll be able to check it in the consolidation phase. And then I can give assignments, or I can evaluate the students in some activities. So what we have seen introductory phase, in which I need to know what is the entry behavior of my students. The development phase, in which I will start teaching the real topic using a lot of examples and other aids. And in the end, I am going to try and establish whether the goals have been achieved or not.
Let us move on. We will also relate it to the future learning. Now, what happens is whenever you tell them that, okay, now today we have understood what is human resource management and what are the various functions of human resource management. Tomorrow, in the next lecture, we will see what are the various skills required for being an effective HR manager and how can you acquire those skills. अब मैंने क्या कर दिया है, एक बॉल उनके कोर्ट में डाल दिया है, इंटरेस्ट जगा दिया है कि कल हम ये लोग करने वाले हैं. Now, if I have an activity plan for them, मैं आज ही ये बता दूंगी that tomorrow everybody should bring A4 size paper and some color pencils and sketch pens with them. Tomorrow we are going to have an activity. Students love activities, and therefore, if we can get those activities in our classes, there would be nothing like it. So always relate the future learning. Finish with a bang. A lecture which finishes with a bang. Now, bang means not like, okay, this was done today, see you in the next lecture. If you can, it could be a song, it could be a story, it could be an activity. But if we can, now not every lecture probably not possible. अगर आपको हफ्ते में 3 lectures मिल रहे हैं, जो आपका आखिरी lecture है, so if it is Monday, Tuesday, Wednesday, so if Wednesday is your last lecture, if you can plan something to finish off with a bang. The students should look forward to your next lecture that comes on Monday. So that is extremely important. Now comes to content. Now जो हमारा पहला C था जो आपको मैंने बताया था application में, that is the content. Now यहाँ पे अगर आप quote देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है write without fear and edit without mercy. Now whenever we design content, we can पहले अगर आप चाहें तो एक फोल्डर बना लीजिए, सब कुछ मटेरियल इकट्ठा कर लीजिए एंड देन उसमें से आप छांटने लगिए कि इसमें से भी बच्चों के लिए what is it that I can give to them which is easy to understand and at the same time is relevant to the syllabus. So content is the most important for teaching learning process. Syllabus, friends, is not in our hands. An expert committee has decided it, but its delivery sure rests in us. I'll give you an example. I feel that the HR syllabus, अगर जो हम पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए अगर आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं आपको लगता है करंट सिचुएशन में उससे कहीं ज्यादा आपको देना है या ये टॉपिक पढ़ाने के पहले आई फील दैट दे शुड नो द बैकग्राउंड ऑफ दैट टॉपिक. सो डिलीवरी आपके हाथ में है, सो आप उनको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कभी भी दे सकते हैं. Nobody is going to stop you from that. Rather, it would be a value addition to the students. उनको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलेगी जो उनको हेल्प करेगी in connecting with the topic. Then comes content has to be according to the understanding levels of students. Now, unfortunately, हमारे यहाँ पे ऐसी कोई सिस्टम इतनी प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड नहीं है जहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स को उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल के हिसाब से डिमार्केट करें. अगर मान लीजिए आपकी क्लास की स्ट्रेंथ 120 है या 200 है, 2 सेक्शंस है 100 के, और उसमें से इफ यू आइडेंटिफाई that 20 students are slow learners, okay, हमारे सिलेबस में है स्लो लर्नर्स के लिए ऐसा कीजिए वैसा कीजिए एक्सेट्रा. बट if you feel that these students are not able to keep up with the speed of the class, you can design some content separately. You can form a different WhatsApp group. अगर उनके पास WhatsApp नहीं है तो क्या उनके लिए मैं कुछ प्रिंटेड नोट्स या कुछ बुक्स रेफर कर सकती हूँ क्या, सो दैट दे कम एट पार विद द अदर स्टूडेंट्स. सो डिजाइनिंग कंटेंट अकॉर्डिंग टू द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब आप बोलेंगे ये थोड़ा एक्स्ट्रा का काम हो जाएगा, मेकिंग कंटेंट डिफरेंट, बट नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम इन आवर हैंड और हम ये आराम से कर सकते हैं. Now, lesson plans are the best way to ensure the effective implementation of your content. When we make a lesson plan, मैं जैसे ये खत्म होता है आपको एक लेसन प्लान का उदाहरण भी दिखाऊंगी.
जो हम लोग बनाते हैं हमारे MBA स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें वी मेक श्योर दैट इफ आई टीच अ पर्टिकुलर यूनिट, वो यूनिट के सब यूनिट में कौन सा लिंक हम लोग स्टूडेंट्स को देने वाले हैं, यूट्यूब का कौन सा वीडियो हम शेयर करने वाले हैं, कहीं से अगर कोई क्विज ऑनलाइन अवेलेबल है तो वो बच्चों को हम देने वाले हैं क्या, इतने पूरे डिटेल्स के साथ हम लोग लेसन प्लान्स बनाते हैं, और वही इंश्योर करेगा कि जो आपका कंटेंट है वो इफेक्टिवली बच्चों तक पहुंच पाए. Then comes structuring the content will help you in deciding the flow of your subject. If you feel unit number 3 should not be unit number 3 but should be unit number 2, तो आप उसको restructure कीजिएगा और आपके हिसाब से कंटेंट को बच्चों तक पहुंचाइए. Is there any question in content part? Am I making myself clear? समझ में आ रहा है? Yes, Sangeeta ma'am, thank you so much for your quick response. Comes to lesson plans. Now, lesson plans we have to make for the entire subject. Remember the subject that you teach or the portion that you want to cover. Now, why portion? Sometimes what happens is एक subject को दो teachers भी पढ़ा सकते हैं. तो जो portion आप पढ़ा रहे हैं उसके लिए आप lesson plan बना सकते हैं. Segregate into topics and subtopics. Each time you walk in or log in, क्योंकि आजकल तो हम लोग log in करने वाले हैं. So every time you log in, you should be ready with what to teach, and the students should be ready with what to learn. जब students को पता रहेगा कि आज की क्लास में ये पढ़ाया जाने वाला है, की आज आपल्याला सर किंवा मॅडम हे सांगणार आहेत, त्यांच्या मनात कुठेतरी ही जाणीव राहिली आहे की प्रॉबब्ली आपल्याला प्रश्न विचारला जाऊ शकतो आणि आपण थोडं बहुत रीडिंग या विषयाबद्दल करून जायला पाहिजे. आणि लेसन प्लॅन्स मध्ये जेव्हा आपण कंटेंट बनवतो तेव्हा आपण पुष्कळ सारा कंटेंट जो हम बना रहे हैं वो कंटेंट हम बच्चों के साथ अगर पहले शेयर करें, अगर लेसन प्लान्स बच्चों के साथ पहले शेयर किए जाएंगे, so the students will be prepared and they have to prepare. जैसे हम चेंज होने वाले हैं, स्टूडेंट्स को भी चेंज होना पड़ेगा. अगर क्लासरूम डिजिटल हुई है तो उन्हें भी थोड़ा बहुत बेसिक रीडिंग करके आना ही पड़ेगा. They should be ready with what is to be learned today. Then comes effective communication again. Visual. Now, when I use the term visual or I say audio visual, there is one very wonderful thing, right? हम लोग इमेज गूगल करते हैं एंड इमेजेस बहुत सारे हमारे सामने आ जाते हैं, पर वो बहुत सारे इमेजेस जो हैं वो कॉपीराइटेड होते हैं. We cannot simply copy that image and use it in our presentation. It is copyright violation. तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में? क्या हम हमारे खुद के कुछ ड्राइंग्स बना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं. autodraw.com नाम की एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आप फ्रीली लॉग इन कीजिएगा, एंड दैट वेबसाइट विल हेल्प यू इन क्रिएटिंग योर ओन डिजाइंस. इट इज अ वंडरफुल टूल एंड आई एनकरेज एवरीवन, इवन जो मैथमेटिकल उसमें कैलकुलेशंस है या मैथमेटिकल फॉर्मूलाज है वो हम autodraw.com पे आराम से बना सकते हैं. उसको सेव किया जा सकता है JPG PNG फॉर्मेट्स में एंड कैन बी यूज्ड इन आवर क्लासरूम. सो उसमें कॉपीराइट वायलेशन नहीं होगा. दूसरी बात, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो फ्री रॉयल्टी फ्री इमेजेस दे रही है. फ्लिकर हो गया, शटरस्टॉक हो गया या अनस्प्लैश हो गया. ये वेबसाइट से आप बहुत सारी इमेजेस यूज कर सकते हैं और आपका प्रेजेंटेशन इफेक्टिव बना सकते हैं. जब मैं ऑडियो विजुअल बोल रही हूँ, अब विजुअल तो हो गया, मैंने आपको बताया बहुत सारी इमेजेस अवेलेबल है या ऑटोड्रॉ से खुद बनाइए. अब ऑडियो के लिए क्या करना है? ऑडियो के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है जहां से आप फ्री ऑडियो इंस्ट्रूमेंटल टैग्स डाउनलोड कर सकते हैं और आपके पावर पॉइंटर्स को इंसर्ट कर सकते हैं. ओके, someone is saying I need to repeat autodraw. Okay, autodraw.com नाम की एक वेबसाइट है जो अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप पे भी कनेक्टेड हैं तो आप ओपन कर लीजिएगा. आपके सामने एक स्क्रीन आएगा
एक पेंसिल का टूल आ जाएगा। सबसे पहले जो ऊपर है वो स्मार्ट टूल है, वहीं आप क्लिक करेंगे। मान लीजिए आप भी स्क्रिबल कीजिए, ट्री निकालने की कोशिश कीजिए, राइट। इफ यू ट्राई ड्रॉइंग अ ट्री, ऊपर के सेक्शन में बहुत सारे ऑटोमेटिक एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपको ट्रीज के बहुत सारे अलग अलग डिजाइन मिलेंगे। जो डिजाइन आपको चाहिए आप सिलेक्ट कर लीजिए। नीचे कलर पैलेट रहता है आपके लेफ्ट हैंड साइड में, कलर चेंज कर लीजिए। टेक्स्ट ऑप्शंस भी है, आप उसमें टेक्स्ट डाल सकते हैं और आपका खुद का बनाया हुआ एक विजुअल क्रिएट हो जाएगा। सेव कीजिए, डाउनलोड कीजिए। इट्स वेरी इजी एंड वेरी इफेक्टिव। ऑटो ड्रॉ, AUTO, ऑटो, DRAW, ऑटो ड्रॉ। सो इट्स वेरी इजी और आप ये आराम से कर सकते हैं। ओके, सो लेट मी मूव ऑन एंड टेल यू अबाउट ओनली ऑडियोज। अगर मान लीजिए आपको सिर्फ ऑडियो के बेसिस पे एक पूरा लेक्चर लेना है, कैसे ले पाएंगे आप वो लेक्चर? तो बहुत इजी है। आप एक पीपीटी डिजाइन कीजिए और उसमें ऑडियो को लूप में डालिए। एक हेडिंग दे दीजिए, से फॉर एग्जाम्पल यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर, आपको देखना है एक सॉन्ग का इम्पैक्ट क्या होता है, या एक पर्टिकुलर ऑडियो का ऑन द मूड्स ऑफ द पीपल। अलग अलग ऑडियोज अगर आप प्ले करना चाहते हैं तो एक एक स्लाइड में एक एक डालिए, ऑन क्लिक उसको करेंगे तो ये आपका ऑडियो चलेगा। सो अगेन इट वुड बी ऑडियो विजुअल। एंड लेट मी टेल यू, सिर्फ ऑडियो और सिर्फ विजुअल इतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि ऑडियो विजुअल इफेक्टिव है, एंड आई एम श्योर यू ऑल विल अग्री विथ मी ऑन दिस। Then illustrations and graphic. PPT is not visible, is it? My PPT, is it visible? Yes, ma'am. Yeah. Okay. Someone just said that it's okay. Someone, I thought कुछ problem हो गया. Okay. So illustrations and graphics. Again, illustrations and graphics are very important. Now, for example, I am making a point on marketing. सेगमेंटेशन के बारे में बात कर रही हूँ, मार्केट शेयर के बारे में बात कर रही हूँ। अगर मुझे बोलना है कि ये जो हमने बैन चाइना प्रोडक्ट्स कर लिया है, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है ऑन द करंट मार्केट शेयर, पतंजलि का बढ़ा है क्या, तो सिर्फ इंस्टेड ऑफ राइटिंग की 50% बढ़ा है, अगर मैं कुछ ग्राफ डालती हूँ, चार्ट्स डालती हूँ, इसका इम्पैक्ट ज्यादा होने वाला है। सो इलस्ट्रेशंस एंड ग्राफिक्स will make our communication more effective. हम लोग कम्युनिकेशन को बोलते हैं ना, रिटन है, ओरल है। तो अगर हमको हमारे रिटन कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना है तो हमको इलस्ट्रेशंस एंड ग्राफिक्स की मदद लेनी ही पड़ेगी। एक जैसे इलस्ट्रेशंस और ग्राफिक्स की हम बात कर रहे हैं तो लाइव चार्ट्स नाम की और एक वेबसाइट है, LIVECHARTS, लाइव चार्ट्स। आप इसके ऊपर लॉग इन कीजिए, यू विल गेट वंडरफुल चार्ट्स, बहुत ही अच्छे, बहुत कलरफुल, यू कैन यूज इट एनी टाइम। दूसरा मैं आपको और एक चीज बता दूं, माइंड मास्टर नाम का एक सॉफ्टवेयर है, आप फ्रीली अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे फिश बोन डायग्राम है, ट्री डायग्राम्स है, या मैथमेटिकल अगर आपको कुछ बताना है तो आप माइंड मास्टर, MIND, माइंड MASTER, माइंड मास्टर नाम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए और उसमें बहुत अच्छे फिश बोन डायग्राम्स, ट्री डायग्राम्स, या इवन फॉर दैट मैटर अलग अलग टाइप के शेप्स, कलर्स में भी आप डायग्राम्स बना सकते हैं। सो इलस्ट्रेशंस, ग्राफिक्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हमको करना है। एज आई सेड, चार्ट्स, टेबल्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स make our written communication more authentic as well. When we have some basic पुख्ता अगर हम कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको ज्यादा मदद मिलेगी। Then extremely important is stories, anecdotes and examples from real life. Now probably people from science may not completely agree क्योंकि उनका थोड़ा technical चला जाता है, but yes, they can quote examples from real life. If not exactly connected to the topic, but if you want to have something अगर आपको आपके students को motivate करना है, stories are a wonderful tool. Storytelling is an art and can be developed over a period of time, but stories जहाँ हम बताते हैं students को
रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हुए या आप एसोप्स फेबल्स बोलिए या कोई भी स्टोरी बोलिए, आप students and especially what I have observed is students love films, movies, और आज की डेट के बच्चे पूरा देख रहे हैं Netflix, Amazon Prime, and you know they are hooked on to this digital web series. So if you feel a particular web series या उसका कोई particular episode आपके टॉपिक से रिलेटेड है, आप उसका अगर कहीं से एक छोटा सा क्लिप ले सकते हैं रिकॉर्डेड, एंड इफ यू वांट टू डिस्कस दैट इन द क्लास, नथिंग लाइक इट, आपके स्टूडेंट्स वो क्लास कभी नहीं छोड़ेंगे. दे विल बी glued to the screen. They will rather be more interested and interactive also when you talk to them. I'll give you an example. Now, if I want to talk about leadership, okay, और मैं बच्चों को बोलती हूँ because अभी महाभारत और रामायण का रीजन हुआ, so the current generation knows what is महाभारत रामायण का जो हम जो देखते थे, they know that. Now, if I want to talk about leadership in organizational behavior and I give them an example of say Pitama Bhishma, or I talk to them about the planning strategies of Krishna, they will be interested. But if I talk about Game of Thrones, if I talk about a web series called as Arya, or I talk into Breathe into Shadows, immediately they will jump in and start pouring in their suggestions. कि नहीं मैम वो इसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So let me tell you that stories, anecdotes, and examples from real life or movies will make your communication more and more effective. Am I going too fast? Okay, no answer means I need to keep on. All right. So how to keep interaction on during the lecture? Build short breaks into the lecture. So हम लोग बोलते हैं stretch break. Now don't tell them that हाँ जाओ एक आध कप चाय पी के आओ यार, oh no, let's take a break. Let's take a break means आप फोरम को ओपन कर दीजिए फॉर चैट. आपके चैट बॉक्स को आप ओपन कर दीजिए, बोलिए बच्चों को कि चलिए एक वर्ड अभी हम लोग डालेंगे अबाउट द लेक्चर. सो आई एम ओपनिंग दिस ब्रेक राइट नाउ. आप सब जो भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे है, सबको एक वर्ड लिखना है कि अभी तक लेक्चर कैसा चल रहा है. सिर्फ एक वर्ड. मुझे चैट बॉक्स में आपके आंसर्स दिखने चाहिए. Everyone has to write one word about the lecture. So Reddy sir has written good. Come on, quick. Yes, Kishore sir. Fantastic. Fantastic. Yes, yes. So what happens is the teacher knows that, okay, these people are listening to me. और ये तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया कि एक वर्ड में आप बताइए. जनरली बच्चे अपनी टीचर के बारे में या इवन फॉर दैट मैटर पार्टिसिपेंट्स विल नॉट राइट एनीथिंग बैड अबाउट द रिसोर्स पर्सन. बट आप क्या कर सकते हो, आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हो उससे रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन पूछो जो प्रोबेबली वन वर्ड या दो वर्ड्स में बच्चे बता पाए. से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वापस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि मैं वही सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, तो अगर मैंने फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ा है तो मैं बच्चों को बोलूंगी कि चलिए अभी आपको जो फंक्शन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सबसे अच्छा लगा वो आप चैट बॉक्स में लिखिए. So you will come to know whether the students are understanding or not. So build short breaks into the lecture. Then ये आप थोड़ा प्लानिंग से कर सकते हैं, पर इसके लिए प्लानिंग लगेगी और अपने पास ऐसे बच्चे होने चाहिए जो आराम से आपको बता पाए कि दे शुड रादर, क्या मैं जिसको बोलूंगी, आपके साथ कोऑपरेट करें. ओके, तो 5 बच्चों का ऐसा एक ग्रुप बना लीजिए. पहले दिन जब आप ये गेम खिलाएंगे तो उन बच्चों को सिलेक्ट कीजिए जो हमेशा आपके साथ रहते थे. अब हम तो इतना तो अपने को पता है कि कौन सा बच्चा अपने को कोऑपरेट करेगा कौन सा नहीं. कोई भी एक गेम ले लीजिए आप. इट वुड बी समथिंग लाइक कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड, पासिंग द पार्सल टाइप का. पासिंग द पार्सल कैसे खेलेंगे, हम नाम लेंगे एक दूसरे का या नंबर्स देंगे, जिसके ऊपर 10 आएगा उसको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी ना. ऐसे ही रोटेशन बेसिस पे आप 5-5 का ग्रुप बनाते जाइए ताकि सबको चांस मिले.
और आपका लेक्चर बोर भी ना हो। अब जरूरी नहीं कि पूरे पांचों को आपको एकदम चांस देना है। आपको लगता है कि नहीं अभी ब्रेक ओवर हो गया, आप दूसरे दिन के लिए एक्टिविटी डाल दीजिए। सो मेकिंग अ ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स विल हेल्प। Now, very important is design at least one or more quizzes for the session. आगे चल के जब हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, मैं आपको पीयर डेक नाम का एक बताने वाली हूँ। उसमें आप लेक्चर में इन बिटवीन द प्रेजेंटेशन क्विज ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। एंड व्हाट विल हैपन इज ना कि उनका उनका इंटरेस्ट जगा रहेगा, बट दे विल लिसन केयरफुली बिकॉज दे नो कि अभी क्विज आने वाली है। इफ दे नो दैट मुक्ताई मैम के लेक्चर में एक क्विज रहने ही वाली है, और आप पहले ही बता दीजिए कि इंटरनल मार्क्स के लिए ये सभी क्विजेस हम लोग पकड़ने वाले हैं, तो उसका वेटेज और बढ़ जाएगा। एटलीस्ट एक क्वेश्चन, एक एमसीक्यू तो आपके पूरे लेक्चर में आना ही चाहिए। So that is one part. Then question should be asked in between the sessions. Again, ये तो हम हमारे classes में भी करते हैं, वैसे session के भी बीच में आप questions पूछते जाइएगा। Ask for recap at the end of the session, क्योंकि हमने देखा था consolidation phase में हमने review की बात की थी, summarization की बात की थी. So we should always ask for recap at the end of the session. अब इसके लिए आप क्या कीजिए, मैं आपको फिर से एक आइडिया दे देती हूँ। आपकी रोल लिस्ट में से आप बच्चों को बोल दीजिए कि ये दिन पे ये लोग रिकैप देने वाले हैं। एक बच्चे को सिलेक्ट कीजिए या 2 बच्चे को सिलेक्ट कीजिए। सो एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स विल गिव अ फीडबैक एट द एंड ऑफ द सेशन। फीडबैक मतलब सेशन अच्छा हुआ कि नहीं वो नहीं, बट रादर पूरे सेशन में जो सिखाया गया है उसका एक रिकैप वो फिर से करेंगे, ताकि समरी भी हो जाएगी और आपको फीडबैक मिलेगा कि बच्चों को समझ में आया है कि नहीं समझ में आया है। आप लँग्वेज बॅरियर हटा दीजिए, बच्चों को बोलिए की मराठीत बोलायचं आहे तर मराठीत बोल बेटा, पण बोल. यानी त्यांचं पण थोडासा कॉन्फिडन्स वाढेल आहे आणि क्लासेसमध्ये जे आपण म्हणतो आहे की इंटरॅक्शन कसं ठेवायचं डिजिटल क्लासेसमध्ये ते पण शक्य होईल आहे. Now, if at all a digital class is, that is an online class is not taking place, आपने प्री रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दिया है बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो आप किसी एक बच्चे को बोलेंगे कि वो अपना वीडियो रिकॉर्ड करेगा, फिर से व्हाट्सएप ग्रुप में डालेगा ताकि सब लोग रिकैप देख सके. So both ways it is a win-win situation for both the parties. Now, skills associated with the delivery of the lecture. Now, being eyes and ears in the classroom. Now, many schools have started with the online lectures, and very, I was very, what should I say, amused, and rather I admired Centerpoint School. One of my colleagues' daughter is a student there. So she told me, ma'am, जब उनकी क्लास चलती है, she's in 6th standard now, तो क्लास चलती है ना मैम, तब एक टीचर बोले सिखाती है और एक टीचर रहती है जो स्क्रीन पे देखती रहती है कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, इज एवरीबडी लिसनिंग, कोई उधर उधर तो नहीं देख रहा है. अब हमारी केस में दिस इज नॉट पॉसिबल ऑल द टाइम, बट ईयर्स तो नहीं है बिकॉज हम लोग काफी बच्चों को म्यूट करने बोलते हैं बिकॉज नॉइज बहुत रहता है. बट इन बिटवीन आप सबको बोलते जाइए से एवरी 10 मिनट्स और सो कि सब लोग अपना वीडियो ऑन करेंगे. तो जब वीडियो हम ऑन करने बोलते हैं, पीपल नो दैट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम मैडम इज गोइंग टू से दैट वीडियो ऑन, व्हिच मींस दे शुड बी रेडी to discuss with the class. So being eyes and ears in the classroom is again very important. As I said, use of anecdotes, stories, songs, movies and TV shows. Now communication boosters. If at all you feel that कहीं ना कहीं पे there is a lull, थोड़ा सा लेक्चर बोरिंग हो रहा है शायद बच्चों को, या आपको लगता है टॉपिक बहुत ज्यादा बाउंसर जा रहा है, ऐसे टाइम पे आप कम्युनिकेशन बूस्टर्स मतलब कोई गेम्स, शॉर्ट गेम्स रिलेटेड, सो दैट बच्चे आगे आए, बात करें. जैसे मैंने बताया आप ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन ले सकते हैं, व्हाइट बोर्ड अटैच कर लीजिए क्लास को एंड स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद द क्लास. क्वेश्चनिंग स्किल्स, वी नीड टू प्रोब. आपको क्या लगता है, what is your opinion on this? If we start asking probing questions to the students instead of तुला समजलं की नहीं समजलंय रे, किंवा तुम सबको समझ में आ गया, should I move ahead? इससे अच्छा if we start asking questions like, what is your opinion on the current skills of human resource management?
आप सबने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ी ही होगी, तो हमको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, इवैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा पूछने हैं। हमको उनके हायर ऑर्डर स्किल्स के, जो हम लर्निंग का आउटकम बोल रहे हैं, सिर्फ डिफाइन आइडेंटिफाई के ऊपर भी उनको आना चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल, मैंने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पढ़ाया, ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन की मेथड बताई, तो अगर मैं यहाँ पे उनको पूछती हूँ, ओके लिस्ट आउट द मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, तो सबके सब नाम बता देंगे। इसी क्वेश्चन को अगर मुझे चेक करना है कि आर दे एबल टू इम्प्लीमेंट व्हाट आई हैव टॉट इनटू रियल लाइफ, आई विल आस्क देम अ क्वेश्चन लाइक, if you are an HR manager and you have to give training to the nurses who have recently joined an hospital, which method of training will you use and why? अब मैंने क्या किया यहाँ पे, उसको तो ट्रेनिंग मेथड पहले आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, और वो मेथड का इम्प्लीमेंटेशन वो कैसा करने वाला है ये भी मुझे पता चल जाएगा। सो क्वेश्चनिंग स्किल्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आप सब लोग आई अर्ज अगेन एंड अगेन यूज कीजिए व्हेन यू वांट टू क्वेश्चन योर स्टूडेंट्स और डिजाइन क्विजेस। Then you need to prepare thoroughly, as I have said, every time you log in you need to be very sure कि आज मुझे क्या बताना है। So preparation needs to be very thorough. Now do not ignore student feedback, whether be it verbal or be it non-verbal. You need to always encourage the students to give the right feedback. Now I will tell you, generally feedback forms सबको मिलते हैं, शायद आपको भी मिलेगा ये लेक्चर के बाद। Now instead of asking a question in feedback like, did you like today's session? Yes, no, maybe. अब इसमें क्या रहता है, बहुत गुंजाइश नहीं रहती है आंसर करने की। Instead you can ask a question like, what are the key learnings from today's session? What points would you suggest for making the session more interesting? अब आपने क्या किया, इसको ओपन एंडेड डाल के, या अगर आप ऑप्शन भी देना चाहते हैं नीचे इसको मल्टीपल चॉइस डालिए। लेट द स्टूडेंट्स come up with their ideas, their opinions, and therefore student feedback, it's extremely important. I'm sure आप सब लोग Google Forms यूज करते होंगे फॉर सर्वेस, या फिर एक ऐप भी आता है जो आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, गूगल फॉर्म्स का, और बहुत उसमें इनबिल्ट भी फीडबैक फॉर्म्स है, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। एंड आई स्ट्रांगली सजेस्ट that after completion of a particular unit or a subtopic, you ask for feedback and do not ignore if the students have that madam we feel that बहुत lengthy हो रहे हैं classes, या अगर वो बोलते हैं कि we are not able to understand it digitally, आप शायद दूसरा मीडियम यूज कीजिए, तो ये फीडबैक को आप प्लीज कंसिडर कीजिए एंड देन मूव अहेड विथ योर लेक्चर। Then do not cover too much material. As I have said, digital world में बहुत ज़्यादा time लोग नहीं बैठ पाएंगे. Unfortunately, we teachers have to sit for our FDP or refresher courses. But with students, we should not cover too much material in one go. They already have a lot of distractions around them. So, how to keep interaction after the session? ये अब तक मैंने जो बात की है, कि during the session या before the session हमें क्या करना है? अब after the session, I feel that you should always form a Facebook page for your particular subject. या अगर आप सबकी Google Classroom बन गई है, उसमें शेयर करने बोलिए। सोशल मीडिया पे मैं क्यों एम्फेसाइज कर रही हूँ? Kids love social media. They are on FB, they are on Instagram, they are on Snapchat. They use WhatsApp like anything. आज तो Telegram भी ऐड हो गया है. So if they, if you ask students to update, something, some assignment, some project work, तो ये हमारा इंटरेक्शन सेशन के बाद भी शुरू रहेगा। सो आप ग्रुप्स बना लीजिए, 10-20 का बनाइए, 5-10 का बनाइए, डिपेंड्स ऑन यू एंड योर क्लास स्ट्रेंथ। बट आई फील FB पेज, और मैं पेज अलग से क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमारी FB की खुद की टाइमलाइन जो है वो थोड़ी सी उससे व्हाट आई शुड से क्रिंज हो जाएगी। तो आप अगर एक अलग से पेज बना लेते हैं या अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं आपके सब्जेक्ट का,
तो आपको अपडेट करना भी इजी पड़ेगा अपकमिंग क्लासेस के बारे में, आप प्लान भी बहुत अच्छे से शेयर कर सकते हो, असाइनमेंट्स दे सकते हो, एट द सेम टाइम प्रोजेक्ट्स भी दे सकते हैं. Then post at least one message daily to let the students know that you want to keep the line active. Now I'm not saying good morning and good night wala message. I want to talk about some say अगर कोई inspirational post आपने देखा है, कोई inspirational video देखा हुआ है, and you just want to tell the students that you are there at that end of the line. So ये हम काम कर सकते हैं, पर उसके लिए पहले हमको कुछ बेसिक रूल्स बनाने पड़ेंगे ग्रुप की, ताकि अननेसेसरी फॉरवर्ड्स पोस्ट्स हम लोग वहां पे एंटरटेन नहीं करेंगे. So WhatsApp group, a very effective medium again. Then Facebook page, I have already told. Now poster competition, extempores, elocution too can be kept. अब आप बोलेंगे ये कंपटीशन हम लोग ऑनलाइन कैसे लेंगे? आप टॉपिक दे दीजिए पहले से ही, एंड अगेन कीप इट लाइव. अगर FB पे जाते हैं तो FB पे आप ले सकते हैं. एक्सटेम्पोर के लिए बच्चों को आप क्या कीजिएगा मैं बताऊं, आप बच्चों को बोलिए 1 मिनट में टॉपिक दे दीजिएगा, एंड किड्स हैव टू रिकॉर्ड देयर वीडियो, दे कैन पोस्ट इट ऑन द FB पेज. अब वही बच्चे, कुछ बच्चों को आप जजेस बना दीजिए सो दैट दे कैन जज एवरीवन. उनके लिए एक रूब्रिक आप ही डिजाइन कर दीजिए कि किस बेसिस पे जजमेंट होने वाला है. बच्चे भी खुश रहेंगे, आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और इंटरैक्शन जो मैं बोल रही हूँ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन फॉर एंगेजिंग क्लासरूम, वो भी जो हमारा गोल है वो भी फुलफिल हो जाएगा. एम आई गोइंग टू फास्ट? No, ma'am. Okay. Yeah. So let's move ahead now. Again, ये आप लोग थोड़ा सा मैडम, तो ये PPT मैंने मैडम के साथ शेयर कर दी है. मैंने जो एक वीडियो बनाया है वो भी दिखाऊंगी. I urge every one of you to use these 3 tools to make your classes more engaging. One of them is Render Forest. It is free. You can log in with your Facebook or Gmail account. Simply type renderforest.com. इस पे आप एनिमेटेड वीडियोस बना सकते हैं, लोगोस बना सकते हैं, बहुत सारी और भी चीजें हैं. मैं खुद फिलहाल इसको वीडियो बनाने के लिए और लोगो बनाने के लिए यूज कर रही हूँ. एनिमेटेड वीडियोस यहाँ पे जो बनते हैं रेंडर फॉरेस्ट में 1 मिनट के बन रहे हैं, मतलब 5 से 6 छोटे छोटे क्या बोलूंगी सीन्स यहाँ पे आप डाल सकते हैं. अब ये कब यूज करने हैं ये मैं बता दूं, क्योंकि हम बना तो लेंगे पर यूज कहाँ करना है ये पता होना चाहिए. सो जब आप कोई एनिमेटेड वीडियो बना रहे हैं, नाउ यू आर एंटरिंग द क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम. अभी एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गया है ग्रेजुएशन का, कुछ दिनों में शायद क्लासेस भी शुरू हो जाएंगे. So the first video that you can share with the students is an animated video on your own introduction, saying that hi, my name is so and so, I will be teaching this topic, and वो topic से related एक scene बनेगा, and then you can ask them कि let us move ahead, और मजा आएगी एक्सेट्रा करके आप कर सकते हो. दूसरा, आप एनिमेटेड वीडियो कब यूज कर सकते हो, जब आपको, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ 5 सीन्स का हम बना रहे हैं 1 मिनट का, तो 1 मिनट में हम क्या ऐसी चीज, इम्पैक्टफुल चीज बच्चों को बता सकते हैं. रिव्यू डाल सकते हो आप आपके क्लास का रेंडर फॉरेस्ट में एनिमेटेड वीडियोस बना के, या फिर आपको कोई पर्टिकुलर सीन इनैक्ट करना है तो भी आप एनिमेटेड वीडियोस बना सकते हैं. यहाँ पे इन बिल्ट कैरेक्टर्स रहते हैं, यहाँ पे इन बिल्ट म्यूजिक रहता है, और म्यूजिक के साथ एनिमेटेड वीडियो किसको अच्छा नहीं लगता, पीपल विल लव इट. सो मेक एनिमेटेड वीडियोस यूजिंग रेंडर फॉरेस्ट. दूसरा है पॉटून. अगेन एनिमेटेड वीडियोस यहाँ पे भी बनते हैं, रेंडर फॉरेस्ट से ज्यादा टाइम लिमिट के यहाँ पे बन सकते हैं. वन सजेशन दैट आई वुड लाइक टू गिव यू ऑल, आप एक अलग जीमेल आईडी बनाइए, क्योंकि ये जो एप्स होते हैं ना, ये परमिशंस मांगते हैं टू एक्सेस योर अकाउंट. तो समटाइम्स वी शेयर अ लॉट ऑफ प्राइवेट पर्सनल स्टफ ऑन आवर अकाउंट्स. पासबुक के इमेजेस हो गए या चेक बुक्स के हो गए. नाउ इफ यू डू नॉट वांट दैट टू बी एक्सेस्ड बाय दीज एप्लीकेशंस, आप एक टीचिंग लर्निंग का अलग से जीमेल आईडी बना लीजिए और वो यूज कीजिए फॉर गिविंग एक्सेस टू these kind of applications. Nothing wrong happens if you use, because I've been using my only.
मैं अपना यूज कर रही हूँ, बट Pawtone स्पेसिफिकली आई एम टेलिंग यू ये एक्सेस मांगता है टू योर जीमेल अकाउंट. So if you don't want to give it, use another Gmail account that you create specifically for, because आपको ICT tools में अभी मैम बहुत बताएंगे और उसमें काफी सी applications आपको access मांगती है. So use a different account. Another lovely tool that I personally love is Canva. एंड कैनवा में आप फ्लायर्स, पोस्टर्स बना सकते हैं, लेसन प्लान्स बना सकते हैं, लोगोस बना सकते हैं, प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, इवन फॉर दैट मैटर फेसबुक, इंस्टाग्राम के टेम्पलेट्स भी आप बना सकते हैं. नाउ व्हाई आई एम्फसाइज फ्लायर्स एंड पोस्टर्स. मान लीजिए आपने कोई कंपटीशन रखा है बच्चों के लिए, जैसे एलोक्यूशन है, एक सुंदर सा पोस्टर बना लीजिए, एक फ्लायर बना लीजिए. इट विल बी इंटर कॉलेजिएट भी आप रख सकते हैं. आप आपके स्टूडेंट्स को बताइए कि जो पोस्टर कंपटीशन आप रख रहे हैं, बाकी के भी बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं. एक छोटा सा कुछ आप उसमें बच्चों को सर्टिफिकेट्स दीजिए. सर्टिफिकेट्स भी डिजाइन हो सकते हैं यहाँ पे, एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. यू नीड नॉट डू एनीथिंग. सो प्रेजेंटेशंस के भी यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मेट्स और टेम्पलेट्स है, बैकग्राउंड्स है, म्यूजिक है, images है, which will make your classes more interesting. So I have talked about Render Forest, which is used for making animated videos and logos. Canva, जहाँ पे आप presentation, lesson plans, flyers, posters बना सकते हैं, and Pawtone again for animated videos. Moving on, again a wonderful tool to make presentations is Prezi. PREZI. इसका आप डाउनलोड भी कर सकते हैं डेस्कटॉप वर्जन, या ऑनलाइन prezi.com पे भी जाके प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं. फैंटास्टिक प्रेजेंटेशंस, लेट मी टेल यू. और ये प्रेजेंटेशंस को आप आपका ऑडियो दे सकते हैं. सो लेक्चर चल रहा है, आपकी आवाज आ रही है, एंड द प्रेजेंटेशन वर्क्स ब्यूटिफुली. माय पर्सनल फेवरेट इज Peer Deck. इट्स एन एड ऑन गिवन बाय गूगल स्लाइड्स. तो जब आप गूगल स्लाइड्स खोलेंगे तो वहां पे एड ऑन का ऑप्शन आएगा. सो एड-ऑन्स में जाके Peer Deck आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा आपके डेस्कटॉप पे. जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेते हैं, Peer Deck में बने हुए प्रेजेंटेशंस में आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यस और नो, मैच द फॉलोइंग, मैथमेटिकल इक्वेशंस, वेबसाइट की लिंक्स, कोई वीडियो अपलोड करना है, तो एवरीथिंग इन वन गो, दैट इज Peer Deck. सो प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद यही प्रेजेंटेशन मैंने Peer Deck पे अपलोड किया हुआ है. सो व्हाटएवर, अगर आपने ऑलरेडी प्रेजेंटेशंस बना लिए हैं, गूगल स्लाइड्स को खोलिए और इंपोर्ट ऑप्शन होता है उसमें. उससे आप आपका जो बना बनाया प्रेजेंटेशन है उसको गूगल स्लाइड्स में ले लीजिए. एड ऑन से आप Peer Deck ऑन कर लीजिए और Peer Deck के थ्रू आप जो आपका प्रेजेंटेशन है उसमें चेंजेस ला सकते हैं. एंड देन बेसिक तो हम MS PowerPoint, जो ये प्रेजेंटेशन मैंने सिंपली बनाया हुआ है, वो तो हम बना ही सकते हैं. एंड वी शुड यूज PowerPoint ऑल्सो. ना असेसमेंट टूल्स, जैसे मैंने कहा कि हमको हमारा कम्युनिकेशन जो है, मैंने बात की थी अबाउट फीडबैक कंप्लीट. अगर आपको याद होगा तो हमने कंटेंट की बात की है, हमने अबाउट कंप्लीट पैकेज जो हम लोग बोल रहे हैं बच्चों को हमको देना है, तो कंप्लीट फुल पैकेज देने के लिए हमको असेसमेंट भी आना चाहिए. सो Kahoot नाम का एक एप्लीकेशन है, आप Kahoot गूगल कीजिएगा, आपको एक क्विज मेकर है, यहाँ पे अलग अलग क्विजेस आप बना सकते हैं, इंटरैक्टिव वीडियोस, इमेजेस के थ्रू बना सकते हैं. जैसे ही आपकी क्विज बन जाएगी, आपको एक लिंक मिलेगी जो बच्चों को आप सेंड कर सकते हैं, एंड टाइम लगा सकते हैं आप पर क्वेश्चन. बिकॉज क्या होता है, ऑनलाइन जब हम कोई भी क्विज लेते हैं तो हम गूगल से पता कर सकते हैं कि आंसर क्या है. Kahoot में आप टाइम डालिए पर क्वेश्चन, अगर आपको लगता है 35 सेकेंड्स इनफ है टू आंसर दिस, आप उतना डाल दीजिए पर क्वेश्चन एंड योर क्विज वुड बी रेडी. असेसमेंट आपको इजी बनेगा. अनदर वेरी इजी इज गूगल फॉर्म्स. गूगल फॉर्म्स के थ्रू आप असेसमेंट के लिए, इवैल्यूएशन के लिए एक फॉर्मेट होता है जहाँ पे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैन बी यूज्ड. या Sunil sir wants to say something, is it? Should I go slow? Am I going too fast? Should I go slow? It's okay. It's okay? Okay.
So Google Forms, so Google Forms आप यूज कर सकते हैं इवैल्यूएशन के लिए. एज आई सेड, आप जैसे ही Google Forms का मैं आपको एक फायदा ये बता दूं कि इवैल्यूएशन आप उसी में हो जाएगा, करेक्ट आंसर उसी में इनबिल्ट कर दीजिए, तो बच्चों को भी पता चल जाएगा कि क्या आंसर सही था क्या गलत था. अगर आपको ये आंसर सही क्यों है ये भी आप वहां पे आंसर में डाल सकते हैं ताकि बच्चे देखें. दूसरा, तो हमको रिकॉर्ड्स रखने हैं. अभी बहुत इंपॉर्टेंट है रिकॉर्ड्स रखना, क्योंकि यूनिवर्सिटी चाहती है कि आपने डिजिटल लिया कैसे लिया. सो गूगल फॉर्म्स का पूरा जो बच्चों का डेटा आता है एक्सेल शीट में ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाता है एंड दैट इज रिकॉर्डेड एंड वी कैन यूज दैट एज आर व्हाट शुड आई से कि हमने ये असेसमेंट लिया है, क्विज दिया है. ये गूगल फॉर्म्स डायरेक्टली हम हमारे गूगल क्लासरूम में भी शेयर कर सकते हैं एज अ क्विज. देन क्विजेस नाम का भी एक एप्लीकेशन आता है जहां पे आप ऑनलाइन क्विजेस शेयर करते हैं. देन अगेन क्विजेस जो है परमिशन मांगता है जीमेल अकाउंट के लिए. सो आई सजेस्ट यू यूज दिस फॉर अ डिफरेंट अकाउंट. देन पीयर डेक में भी इनबिल्ट असेसमेंट टूल्स आते हैं और प्रोपॉफ्स नाम की एक वेबसाइट है जहां पे आपको वेरियस टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट, इंग्लिश टेस्ट इनबिल्ट है. आप वो भी लिंक सीधा सीधा बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं. So we have talked about assessment tools such as Kahoot, Google Forms, quizzes, Peer Deck and Propops. I'll be moving ahead now. जैसे मैंने कहा फ्री इमेजेस जो है जो Unsplash, Flickr and Shutterstock पे आप यूज कर सकते हैं. Now, as I said, there are many challenges for the digital classroom, and one is inability to converse freely if the lecture is a recorded one. Now, for us teachers, when we attend FTP, shared recorded lectures can work. For students, if he or she has a particular problem, okay, and this would be what should I say, very relevant to the science teachers. Because if they are teaching a particular formula and the student does not understand, वो immediately बच्चा नहीं पूछ पाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी अगर रिकॉर्डेड रहता है. तो आई सजेस्ट, अगर आप लोगों के पास ऑनलाइन क्लासेस रोज लेने की सुविधा नहीं है या बच्चे नहीं है दैट टेक सेवी, तो हम क्या करेंगे, हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स देंगे और उसके साथ साथ तुरंत उनको एक कोई तो भी क्विज या असाइनमेंट देंगे जिससे वो हमें पता चले कि दे हैव अंडरस्टूड इट और नॉट. सो दैट इज वन बेसिक चैलेंज. देन कम्स डिजिटल डिवाइड. Some people are accessible to the internet, some people have connectivity issues. अगर इंटरनेट है भी तो डेटा पैक कम का रहता है. रोज जैसे इनिशियली हमने जब क्लासेस शुरू किए थे, so the CR of the class came called me and said कि मैम रोज 3-3 लेक्चर्स रखते हैं ना जूम पे तो हमारा सबका डेटा खत्म हो जाता है, क्योंकि उनको डेटा बचाना होता है नेटफ्लिक्स और अमेजोन के लिए. So everybody does not have a Wi-Fi system in at place at home. So we need to make sure कि किसका कितना, जैसे इसलिए मैं पहले से आपको बता रही हूँ स्टूडेंट इश्यूज को मद्देनजर रखते हुए हमको हमारे क्लासेस चलाने पड़ेंगे. Then comes lack of motivation. Now teachers also are demotivated in the sense that they are not able to see their students in front of them. So lack of motivation in the students as well as teachers is going to be there. But we teachers need to overcome this by making sure कि हम कहीं ना कहीं पे ये freely बच्चों के साथ if at least not daily, maybe once a week interact करें. So inability to express freely, that is again, how do we overcome the challenges? So making assignments or activities where the students will get a chance to connect. Now telephonic calls for those who cannot access internet. If at all you know कि मेरे क्लास में 50 बच्चे, 50 में से 5 ऐसे हैं जो इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है उनके पास, आप उनको हफ्ते में एक बार भी अगर कॉल करेंगे, they will feel better. They will feel that they are still connected to the other world, that is the classroom. Keeping connected via social media, आप हमेशा अपडेट करते जाइए बच्चों को. WhatsApp again is a wonderful medium to be used to keep in touch with the students. Now the pandemic as an opportunity should be seen to learn and adapt to the new normal. So because जैसे मैंने पहले ही कहा, अगर कोरोना पैंडेमिक नहीं आता था
तो शायद हम लोग डिजिटल क्लासरूम्स इतना इजीली एक्सेप्ट नहीं करते थे. So we can overcome these challenges. So let us summarize now. Communication skills are extremely crucial for engaging classrooms. Be it our language skills, हमने बात की थी about body language skills. We had talked about mode of learning, and we have also talked about assessment or feedback from the students. We have also talked about the C's of communication, जहाँ पे हमने देखा था that we need to understand the level of the students and adjust the content of the lecture accordingly. So content has to be created which should be concise in smaller form, and at the same time it should be complete aesthetically and artistically. Then content should not only be meaningful but also must be presented artistically in a manner so as to make a mark on the students. तो ये हमने देखा था in the key skills or the new skills of the teachers. Content, though not in our hands, its sure delivery rests entirely upon us. And then use of interactive tools, जो हमने बात की थी about Render Forest, Canva, Potool, Peer Deck, Kahoot, Google Forms, everything should be used to make our classes more engaging, entertaining, and interesting. And I love this quote that if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Thank you so much for your time. Before I end, let me show you what are the other things that I wanted to say. मैंने Potool, sorry, Render Forest में एक बनाया हुआ है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ. लेसन प्लान्स का एक फॉर्मेट दिखा देती हूँ so that you can understand that. Okay, just give me a minute. Just a minute. Yeah, this is. Yeah, so as I had told you, I will be talking about Peer Deck. अब मैं देखिए यहाँ पे मैंने वही स्लाइड्स है मेरे सब कुछ. अब यहाँ पे एक बटन होता है स्टार्ट द लेसन. अभी मैं ये लेसन जैसे ही स्टार्ट करूंगी, it's working. It will give me two options. ये स्टूडेंट पेस्ट रखना है कि आप अगर ऑनलाइन मोड पे सिखा रहे हैं तो क्या करना है. अगर आपको लगता है कि इसको आपको स्टूडेंट पेज पे कराना है, दैट स्टूडेंट्स जब चाहे इसको देख सके, तो भी आप कर सकते हैं. Yes, देखिए आप, student paced activity allows you to get all the power of peer deck engagement even when the students are working through lesson at their own pace asynchronously. जब हम asynchronous बोलते हैं उसका मतलब होता है the students are working on their own, you are not there physically present. Okay, या होता है ये instructor paced activity. अब जैसे ही मैं यहाँ पे instructor paced activity पे क्लिक करती हूँ, वो मुझे ऑप्शंस देगा in sharing कि okay, what the students को एक कोड देना पड़ेगा, वो कोड स्टूडेंट्स अपने इसमें लेंगे. स्क्रीन पे अगर आपको दिखेगा ही, तो जो लोग मैं those who are on desktop or on laptop, I suggest that you use that code and go through the slides that I have prepared. इससे आपको पता चलेगा कि जो पहला मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है स्लाइड का, नेम एंड माय नेम, एंड देन आई हैव गिवन इमीडिएटली पियर डेक में ही ये ऑलरेडी इनबिल्ट टेम्पलेट था. उसमें 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आपको बिगिनिंग ऑफ द सेशन क्या करना है, ड्यूरिंग द सेशन क्या करना है, एंड आफ्टर द सेशन के जो हम लोग बोलते हैं वो भेजिए. अब देखिए, वेटिंग फॉर स्टूडेंट्स, joinpd.com पे जाके आप लोगों को ये जो है ये डालना पड़ेगा.
anybody who is on laptop or desktop, can you go on joinpd.com and simply give this code? Hello? Yeah, are you getting me? अब ये कि लिंक कॉपी टू क्लिपबोर्ड है, मैं चैट बॉक्स ओपन कर रही हूँ और सबके लिए वो लिंक डाल रही हूँ. Okay, now can you get, everybody has got the link? Yeah, Rajesh sir has joined probably. Anyone else who has joined? अब देखिए, ये मैं प्रेजेंटिंग मोड में आ गई हूँ, मेरे 30 स्लाइड्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं. दिस इज द फर्स्ट वन. नाउ यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, व्हाट डू यू वंडर अबाउट टुडेज टॉपिक. जैसे मैंने आपको कहा था एंट्री बिहेवियर चेक करना है. अब यहाँ पे जो बच्चा है नीचे लिखिए स्टूडेंट्स राइट योर रिस्पॉन्सेस आ रहा है. अभी तक नो रिस्पॉन्सेस है, but once somebody writes, anybody, can anyone write something in this window? Okay, there are 4 responses now. Yes, someone has written yes, that is good. Yes. So someone is saying feeling nice. See, so हमने क्या किया, ये peer deck में ये inbuilt ये था, मैंने इसको यहाँ पे मेरे presentation में डाल दिया है. And people can, अब जो आपके students है यहाँ पे जब आप सिखा रहे हैं आपको नीचे responses भी दिखते जाएंगे और 7 responses आ गए हैं मुझे, and I can go ahead if I want. Now, अब यही मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी प्लानिंग आउटकम्स. अब देखिए मैंने यहाँ पे और एक चीज डाली हुई है, ड्रैग योर डॉट टू हाउ यू आर फीलिंग. जो मैंने आपको बताया था ना कि शॉर्ट ब्रेक दीजिए, कुछ तो भी मेक श्योर दैट द क्लास इज एक्टिव. अब कोई बच्चा अगर बोलेगा कीप गोइंग, आई अंडरस्टैंड, आई एम अ लिटिल कंफ्यूज, और स्टॉप, आई नीड हेल्प. नीचे देखिए स्टूडेंट्स ड्रैग द आइकन, यहाँ पे आपको आइकन मिलेगा, आपको उसको ड्रैग करना है. कैन यू डू दैट? यस, सो यहाँ पे दिखा है लोगों ने कीप गोइंग, आई अंडरस्टैंड आ गया है. मतलब क्या हुआ, मुझे फीडबैक मिल गया, बच्चों को भी कुछ अच्छी चीज करने मिल गई. ओके, अगेन आई मूव ऑन टू द स्लाइड्स. अब मुझे लग रहा है मैंने एमसीक्यू डालना चाहिए, तो यहाँ पे आप एमसीक्यूज भी डाल सकते हैं. मैंने अभी के लिए इसमें नहीं डाले हुए हैं, बट यहाँ पे इनबिल्ट फॉर्मेट में इसमें है, आप डाल सकते हो. अब यहाँ पे मैंने उनको क्वेश्चन पूछ लिया बीच में, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको क्वेश्चंस बिल्ड करने हैं आपके प्रेजेंटेशन में. So can all subjects use animations, PPT or audio visual aids? This question I have asked to you all. तो हो सकता है क्या, आप again student को drag करना है agree या disagree में. So again you can have true or false, match the following. ऐसे बहुत सारे formats इसमें already available है. So I have got 8 responses. One response is saying disagree, which means they feel probably कि नहीं, यहाँ पे नहीं हो सकता है. So we will move on. Then, as I had told you that we need to understand कि उनको समझा है कि नहीं समझा है. So मैंने अब यहाँ पे और एक स्लाइड डाल दी. Again, this is an inbuilt template in Peer Deck. Reflect on today's activities. What do you like? What didn't you like? What was easy and what was hard? ये एक रेडीमेड टेम्पलेट था इवैल्यूएशन के लिए जो मैंने यूज किया. आई थॉट दैट आई शुड, नाउ स्टूडेंट्स कैन ड्रॉ एनीवेयर ऑन दिस स्लाइड है. अब ड्रॉ मतलब आप पेंसिल से लिख लीजिए. अब देखिए पेंसिल किसी ने ये की हुई है. सो व्हाट वाज इजी, अब आपके क्लास में बच्चे आपको बता पाएंगे कि व्हाट डू दे अंडरस्टैंड और नॉट. आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर. यस. So, okay, now in 1 minute, write the most important thing from today's session.
सो व्हाटएवर, अगर आपका सेशन एचआर का है, यूपी का है, या आप मार्केटिंग पढ़ा रहे हैं, या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं, बॉटनी है, जूलॉजी है, मैथमेटिक्स है, जो भी आपने स्लाइड्स में बताया है, आप बच्चों को बोलिए कि 1 मिनट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको आपने आज के लेसन से सीखी है वो क्या सीखी है. नाउ दिस इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन, स्टूडेंट्स कैन राइट हियर एंड यू विल अगेन show responses. Yes, very informative session से नहीं लेगा है, we learned whatever it is. Okay, so यहाँ पे आपने क्या कर दिया है, बच्चे को एक अटेम्प्ट दिया है टू इंटरैक्ट विथ द टीचर, और ऐसे ही आप बहुत सारी चीजें पीयर डेक के थ्रू कर सकते हैं. आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर. मैंने यहाँ पे और एक छोटा सा ये डाला हुआ है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन. सर्कल हाउ यू आर फीलिंग. ये आप लेक्चर के चाहे शुरुआत में लें चाहे एंड में लें, या दोनों टाइम लीजिए. आप पूछिए बच्चों को, अगर किसी बच्चे ने मान लीजिए शुरुआत में ये रखा था और बाद में आपको ये सर्कल किया एट द एंड ऑफ द लेक्चर, तो probably आपको पता चलेगा that the kid probably is getting bored, was not happy with the lecture. और अगर आपको दोनों टाइम ये मिलता है कि लेक्चर के बाद भी बच्चा हंस रहा है, हैप्पी है, मतलब he is motivated and he has understood everything. So that was everything from my side. Let me now show you the for tool as well. Yeah, can you see my screen? No, madam. No, you're not. Just a moment. Yes, ma'am. It is buffering time is there. Yeah, buffering time is there. Yeah. Yeah, can you see all? Yes. Should I start it from the beginning? So this I had prepared. It's a 1 minute. I told them my name. I told them what organizational behavior is. So I gave them some idea. I asked them a probing question. Why have you thought? I related it to organizational behavior. So organizations and behavior को मैंने यहाँ पे address किया है. And then I told them, so let us together learn about, looking forward to see you guys. So 1 minute का एक छोटा सा मैंने share कर दिया था. I'll just stop this, and lastly I will show you the course plan. A little buffering time is there, but lesson plans आप कीजिए, आपको you will definitely get a better idea, and you can also make lesson plans. Lesson plans अगर एक बार बन गए ना हमारे, अपना आधा जंग हम लोग बोलते हैं आधी जंग जीत ली, because we have already created that material with everyone. It's taking a lot of time. So meanwhile, if anyone has any questions, you please feel free to ask till this loads, so that I can say bye-bye to you all. Yeah, so this is the course plan. Visible है? Ma'am, just No, ma'am. not yet shared, ma'am. Just yes. Visible. Yes? Yeah. You're able to see that? So Yes. this is the course plan module. So I have said ये मेरा basic module type है, ये उसका description मैंने दे दिया कि ये module में क्या पढ़ाया जाएगा. फिर मैंने यहाँ पे मूवी बोली है, मैं बच्चों को पुष्पक मूवी बताने वाली हूँ, और जब मैं बोलूंगी टोन और डिक्शन, तो मैं अमिताभ बच्चन और शॉन कॉनरी का एग्जाम्पल फेमस डायलॉग्स में जो कॉपी कर चुकी हूँ यूट्यूब से,
वो उनको दिखाऊंगी कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टोन, पिच, क्लैरिटी ऑफ स्पीच या एक्सेंट एंड पिच, एंड हु बेटर देन अमिताभ बच्चन टू टेल देम अबाउट टोन, द बैरिटोन हम लोग जिसको बोलते हैं. So that is again there. Then sentence construction में I have already मैंने PPT बना रखी थी. So PPT and notes and YouTube के videos आप अगर देखेंगे तो मैंने यहाँ पे already डाल के रखे हुए हैं. E-resources भी मैंने बच्चों के लिए already यहाँ पे जमा करके रखे हैं. This I can share with my students. So this is the lesson plan that I have created. You all can also create it similarly. Yeah, that was it from my side. If anyone has any questions now, please feel free to ask. Insert learning toolbar का भी देखा मैंने, किसी ने बोला था. Yes, insert learning is also a wonderful interactive tool that can be used. ऐसे तो बहुत से tools हैं. I'm sure in the coming days you will learn more about it. If anybody has any question, you can unmute yourself and ask. No questions. Everybody is saying बहुत हो गया अभी. Let us go back to our work. Yes, we understand. Ma'am, if they need, we will plan demo session on Render Forest and Peer Deck. Yeah, sure, not an issue. Okay. ठीक है मैम, अपन डेमो सेशन प्लान करेंगे, मतलब डेमोन्स्ट्रेशन, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हाउ टू वर्क ऑन रेंडर फॉरेस्ट. Actually I have planned render forest in recorded form, but as you are doing it on the live form, that is also okay, no problem. No, yeah, we can do that. Girish Thapre sir said any security issues are there. सर जैसा मैंने इसके पहले भी बताया था, आप एक सेपरेट जीमेल अकाउंट बना लीजिए. सिक्योरिटी इशू आते नहीं हैं, पर सजेशन मेरा ऐसा रहता है कि अगर हमने एक अलग हमारे टीचिंग के लिए बना लिया जीमेल, तो हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल फिर अलग अलग रहते हैं, और उसमें हम काफी एप्स को फिर परमिशन दे भी दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है ऐसी सिचुएशन में. तो एक अलग से जीमेल आईडी बनाना इज ऑलवेज बेटर. Anyone who has any other questions? I believe no questions means understood everything or understood nothing. I believe it Hello? is not the later one. Hello. Yes. Hello. Yeah, I am Dr. Rajesh Bogre. Okay, sir. Yeah, in Canva, the quality of browser or any posters not good. It's like we purchase the Canva. The quality is In free tool Canva, the quality of that poster or some kind of brochure we can create is not good. no So sir, can quality we- is good. We have used it. हम print भी निकाल चुके हैं उसका. सिर्फ अगर खरीदे नहीं तो Canva का watermark रहता है. पर we don't have any problem with the watermark. हमको क्या करना है? हमको तो sure. digitally बच्चों को करना है ना? Yes. Watermark रहता है, पर quality is really nice sir. कोई problem नहीं आएगा. Okay. मैं कैनवा पे एक प्रेजेंटेशन बना भी रही थी. अरे वाह, दिन दिन धा चल रहा है किसी के यहाँ पे. फैंटास्टिक. I am already working on a presentation as well in Canva, but Canva is really nicer. लेसन ये देखिए, ये जो मैंने ये डाली हुई थी ना इमेज या कंटेंट, और ये वाली, ये देखिए मैंने कैनवा पे ही बनाया है सर. Ma'am, screen is not visible. Oh, I'm sorry. I did not. Sorry. भूल जाते हैं वो. Sorry. अभी आया स्क्रीन? Yes ma'am, it is there. आ रहा है. आ रहा है. Reference. ओके सर, देखिए Yes, ये ma'am. मैंने कैनवा पे बनाया हुआ है. मैंने एकदम क्लियर है. मैंने इसको देखिए, आप जब आप डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, Yeah. तो इट आस्क्स यू कि आप MP4 में करना चाहते हैं कि आप JPG करेंगे, PDF करेंगे. तो मैंने PNG और JPG दोनों करके देखा है.
और ये मैंने इमेज जो बनाई थी यहीं पे बनाई थी, यहाँ पे फिशबोन वगैरह डायग्राम्स की काफी टेम्पलेट्स आपको दिख रहे हैं, यू कैन यूज दैट Yes, एंड yes, कैमरा, yes, yes. या Thank you, thank you. या ओके देन आई बिलीव नो क्वेश्चंस। मैम अपन ऐसा करते हैं, कमिंग डेज में अपन ये जो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर जो अभी आपने बताया है इसके डेमोन्स्ट्रेशन वाले सेशन रखेंगे, सो दैट ये चलेगा। प्रैक्टिस भी कर सकते हैं उसके अंदर। हाँ डेफिनेटली, आज उनको नॉट एक एन ब्रीफ इशू। आइडिया आ गई है वो सॉफ्टवेयर क्या है जो आपने हाँ बताया है। सो फॉर डेमोन्स्ट्रेशन राइट सेशंस वी विल प्लान इन अपकमिंग डेज, सो राइट दैट राइट, तब प्रैक्टिस तक भी हो एवरीवन जाएगी। कैन, या यस, एंड आई सजेस्ट जब अपन डेमोन्स्ट्रेशन लेंगे ना तो सब लोग अपने अपने सब्जेक्ट का हाँ एक हाँ, टॉपिक चूज करके आए, तब यस आई विल बी एबल टू टेल देम कि यस। पीयर डेक में भी अगर एक पीपीटी 4-5 स्लाइड की भी लोगों ने अपने अपने सब्जेक्ट की बना के रखी तो वो और इजी हो जाएगा अपने लिए। ओके मैम, आप वो जो प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट्स क्या रहेगी आपके सेशन की, वो आप मुझे पहले अगर बता देते हैं कि पार्टिसिपेंट ने क्या करके हाँ रखा है, हाँ बिल्कुल, तो वो मैं इनके साथ शेयर कर दूंगी सो दैट दे विल बी प्रिपेयर्ड अबाउट इट। राइट राइट, वी विल डू दैट मैम। यस मैम, ओके। सो अभी कोई क्वेश्चन है और किसी को, कि अपन रुकते हैं यहाँ पे? आई थिंक सबको अभी जाना है, एवरीबडी मस्ट बी बिजी। okay, okay. So thank you so much, ma'am, for your wonderful and थैंक यू, informative session and for joining थैंक us यू सो in the मच। first session. Thank you all. Ma'am, see you soon in the ओके, next session. Thank या, you so much. Thank you. बाय बाय, थैंक यू। पार्टिसिपेंट्स आप रहिए लाइव ही में, मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस देने हैं। आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? आप अनम्यूट कर सकते हैं? Yes, madam. हाँ Yes, ma'am. आज का अभी, हाँ हाँ जस्ट फिर से इको आ रहा है। आई एम ऑडिबल? अभी आपको मुझे आवाज आ रही होगी, इको नहीं आ रहा है। Yes, ma'am, लेकिन इको आ रहा है। Yes, ma'am, लेकिन इको आ रहा है। एक मिनट। हेलो, आ रही है मैम। हाँ अभी अपना फर्स्ट सेशन हो गया है, तो इसके ऑनवर्ड्स आपको जो भी आईसीटी के सेशंस दिए हैं वो आपको वीडियो के फॉर्मेट में स्टडी करना है। थोड़ा ब्रेक ले लीजिए आधे घंटे का वगैरह, एंड एट योर एंड यू स्टार्ट योर आईसीटी सेशंस विद दैट प्री रिकॉर्डेड वीडियोस। रोज मैं मॉर्निंग में ही अपलोड कर दूंगी 8 बजे वगैरह, सो दैट मॉर्निंग वाला पीरियड भी आप लोग यूटिलाइज कर पाएंगे। जिन लोगों को आफ्टरनून में अगर कॉलेज है तो 8 बजे से ही अपने वो आईसीटी के सेशंस चालू हो जाएंगे। आप अपने एंड से उसको देखिए और सारी चीज़ें अच्छे से उसमें से परफॉर्म करिए, क्विजेस और असाइनमेंट। जैसे अभी मैडम ने कुछ और सॉफ्टवेयर बताया है तो उनका अपन डेमो सेशन लाइव में लेंगे, जैसे मैं टाइम टेबल में प्लान करती हूँ। तो अगर आपको कुछ डिफिकल्टी होगी टाइम टेबल में या तो कुछ और सेशंस के लिए आप लोगों की जो भी रिक्वायरमेंट होगी, आप लोग मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भी बता सकते हैं। होप आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। स्टार्टिंग में कुछ इनिशियली कुछ पार्टिसिपेंट्स को कनेक्टिविटी का इशू था, लेकिन जैसे ही टाइम हुआ बाकी लोगों ने ज्वाइन कर लिया था। तो कल भी अपन, और एक चीज, कल अपने 2 लाइव सेशंस रहेंगे 10:30 से 12, 12 से 12:15 तक अपन या तो 10-15 मिनट का थोड़ा ब्रेक देंगे और उसके बाद कंटिन्यूएशन में सेकंड सेशन रहेगा विच विल बी टेकन बाय डॉक्टर आशीष लिंगे सर। पहला सेशन वो इमोशनल इंटेलिजेंस पे लेंगे विच इज रिलेटेड टू सॉफ्ट स्किल, एंड सेकंड लेक्चर इज ऑन इफेक्टिव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जो एडिशनल टूल्स है वो भी वो शेयर करेंगे। तो कल प्रिपेयर रहिएगा। कल अपने 2 सेशंस रहेंगे लाइव फॉर्म में, 10:30 से 12, 5-10 मिनट का ब्रेक रहेगा, उसके बाद 1:30 बजे तक अपने सेशंस रहेंगे। आपको मीटिंग को लीव नहीं करना है, कल मीटिंग चालू ही रहेगी। आप 10 मिनट का ब्रेक ऐसे ही ले सकते हैं रिफ्रेशमेंट के लिए, बट मीटिंग में आप लोगों को कनेक्टेड ही रहना है। तो 10:30 बजे आप जो कनेक्ट हो जाएंगे वो डायरेक्टली 2 सेशन होने के बाद आपको मीटिंग को लीव करना है। कल के लिए मैं बता रही हूँ, संडे के लिए। गॉट इट? आप चैट बॉक्स में यस लिख के भेज सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए अपन यहीं पे रुकते हैं। आप अपनी आईसीटी के सेशंस की प्रैक्टिस करिए
थोड़ा ब्रेक ले लीजिए और उसके बाद आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देखिए, उसमें कुछ डिफिकल्टी आती है, कोई स्टेप्स नहीं समझते हैं तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ओके, so we will stop for today. Thank you very much everyone for joining our first session of the first day, and all the best for your ICT sessions. Okay. मैम टाइम एक्सटेंड नहीं हो सकता मैम? क्यों मैम? हाँ, टाइम एक्सटेंड मुझे एक दो जन बोल रहे हैं, तो आप अगर मॉर्निंग से 8 बजे से आपको टाइम मिलता है तो आई थिंक इवनिंग 6 PM तक सफिशिएंट टाइम आप लोगों के पास रहेगा। हो सकता है तो मैं मॉर्निंग 8 से लेके इवनिंग 8 PM तक वो चालू रखती हूँ। 12 घंटे का टाइम आई थिंक इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, बिकॉज वीडियोज वेरी शॉर्ट वीडियोस 15 to 20 मिनट्स के वीडियो है, जो आप एक बार बैठ गए ना तो हार्डली 1-2 घंटे में भी आपका सब कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ आपको एक बार उसके तरफ अच्छे से ध्यान से बैठना है और 2 घंटे निकालने हैं। तो 6 घंटे का कोर्स अपना है, उसमें से 2 घंटे तो आप लोग इजीली निकाल सकते हो आई थिंक, और निकालना ही होगा सर। और नेट का वगैरह कुछ इश्यू रहता है तो सुबह 8 बजे से शाम के मैं 8 बजे तक उसको एक्सटेंड करती हूँ, तो 12 बजे का पीरियड आपको सफिशिएंट, 12 घंटे का पीरियड आपको सफिशिएंटली मिल जाता है सारा टास्क परफॉर्म करने के लिए। उसमें से अपना कुछ टाइम जाएगा लाइव सेशंस में, लेकिन बाकी का टाइम आप लोगों को मिलेगा बाकी के रिकॉर्डेड वीडियोस देखने के लिए और असाइनमेंट सबमिट करने के लिए। ओके ओके मैम। ओके, सो रात के 8 बजे तक आप लोग उसको कंप्लीट कर सकते हैं, डोंट वरी। और किसी को कुछ डिफिकल्टी है? ठीक है, सो वी विल स्टॉप आवर सेशन टुडे। वी विल मीट टुमारो एट 10:30। आई विल सेंड द लिंक इन व्हाट्सएप ग्रुप ओनली। ईमेल आईडीज पे मैं नहीं भेजूंगी, अपना जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसी पे मैं आज रात को ही लिंक सेंड करूंगी कल के सेशन की। फाइन, सो सी यू टुमारो एट 10:30। कल 2 सेशंस रहेंगे। ओके, सो गुड डे। ओके मैम, थैंक यू। Okay, you can leave the meeting now. ओके। Okay.